Dear students, myself Dr. Dipti Srivastav, Associate Professor in Zoology, Government Dungar College, Bikaner. Today we will discuss on common poisonous snakes of India. Common poisonous snakes are cobras, kraits, pitless vipers, pit vipers, sea snakes and coral snakes. All have poison glands and some of their maxillary teeth modified into phalanges. Their tails are cylindrical except in sea snakes. Heads are covered with shields and ventral sheets cover the entire width of belly. साधारण विषैले सर्प नाग, क्रेट्स, गर्तहीन वाइपर, गर्त वाइपर, समुद्री सर्प और प्रवाल सर्प हैं। सब में विष ग्रंथियाँ होती हैं और उनके कुछ मैक्सिलरी टीथ विष दंतों में रूपांतरित हो जाते हैं। समुद्री सर्पों के अलावा उनकी टेल बेलनाकार होती है। उनके सिर शल्कों के बजाय शील्ड्स द्वारा ढके रहते हैं और वेंट्रल शील्ड्स बेली की संपूर्ण चौड़ाई को ढके रहते हैं। Every year 20,000 people die due to venomous snake bites in India. Other facts about snakes of India are king cobra is the most poisonous snakes in India and krait is the most deadly and dangerous snake of India. इंडिया में प्रति वर्ष 20,000 लोग सर्प के काटने से विषैले सर्पों के काटने से मरते हैं। इंडिया में किंग कोबरा सबसे अधिक पॉइजनस स्नेक है तथा क्रेट जो है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस या खतरनाक सांप है। इस फिगर में हम कुछ पॉइजनस स्नेक्स को देख रहे हैं। यह इंडियन कोबरा नाजा नाजा, किंग कोबरा, क्रेट, इंडियन पिटलेस या रेसल्स वाइपर, हिमालयन पिट वाइपर, रेटल स्नेक, कोरल स्नेक, लेकेसिस का हेड यहाँ पर दिख रहा है और सी स्नेक या हाइड्रोफिस। Some poison snakes. First, cobra. The common Indian cobra is Naja naja or Naja tripendians. It is the most common and deadly poisonous snake of India. Length is about 20 meters and black or brown color variable. Head is small and indistinct. Pupil is round. Neck can dilate into a hood supported by ribs and may bear spectacle marks dorsally. The third supralabial shield of upper lip touches eye and nasal shield. Subcaudal shields are in two rows. Phalanges are anterior, grooved and permanently erect. It feeds on small birds, rats, frogs, lizards, etc. Its chief enemies are the jungle fowls which destroy its young brood and the mongoose that kills it. इंडिया का सबसे कॉमन कोबरा नाजा नाजा है। यह भारत का
सर्वाधिक सामान्य और विषैला सर्प है। इसकी लंबाई 2 मीटर होती है। रंग इसका काला या भूरा होता है। सिर छोटा और अस्पष्ट होता है। आँख की पुतली या प्यूपिल गोल होती है। गर्दन पर हुड होता है और उसके डॉर्सल साइड पर चश्मे का या ऐनक का चिन्ह होता है या चिन्ह होता है। अपर लिप की थर्ड सुप्रालेबियल शील्ड आई को तक टच करती है। आई और नासिका या नेजल शील्ड को टच करती है। सुप्राकॉर्डल शील्ड्स 2 पंक्तियों में होते हैं। ये छोटी चिड़ियों, चूहों, मेंढकों, छिपकलियों आदि को खाता है। इसके मुख्य शत्रु जंगल फाउल हैं जो इसके बच्चों को नष्ट करता है, और मैंगूज या नेवला होता है जो इसे मार डालता है। वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड डेडलिस्ट venomous snake is the king cobra or Hamadryad Ophiophagus henna, also known as Naza henna or Naza bungarus. It lives in deeply forested areas and grows to about 4 meters. It feeds mainly on monitor lizards and other snakes, hence the name king cobra. सर्वाधिक बड़े और घातक विषैले सर्पों में किंग कोबरा आता है। ये घने वन वाले क्षेत्रों में रहता है और 4 मीटर तक लंबा होता है। ये मुख्यतः मॉनिटर लिजर्ड्स तथा अन्य सर्पों को खाता है, इसलिए इसे नागराज या किंग कोबरा कहते हैं। ये देखिए, ये है नाजा जो कि काला या भूरे रंग का होता है। आगे की तरफ इसका हुड है और हुड में हम स्पेक्टिकल मार्क देख रहे हैं। और ये है किंग कोबरा जो कि सर्वाधिक बड़ा और घातक विषैले सर्पों में है। नेक्स्ट इज क्रेट्स. Crates occur all over India. The common crate, Bungarus caeruleus, grows to a length of 1.2 meters. Vertebrals are large and hexagonal. Fourth infralabial is the largest. Subcaudals are single. Ventral surface is white. Dorsal surface is bluish or brownish black with narrow white cross streaks. Their fangs are small and wounds inflicted superficial, but poison is 3 times as virulent as that of cobra. It is the terrestrial and diurnal snake, feeding on small amphibians, lizards, snakes and mammals. The banded crate Bungarus fasciatus is most restricted to northern India. Its body is marked with alternate broad black and yellowish rings, imparting a beautiful but deathful appearance. ये भारत भर में पाए जाते हैं
साधारण क्रेट बुंगेरस सेरुलियस है जो कि 1.2 मीटर तक होता है। वर्टिब्रल्स शल्क बड़े और हेक्सागोनल होते हैं। चौथा, इंफ्रालेबियल शल्क सर्वाधिक बड़ा होता है। सब कॉर्डल्स एक रो में होते हैं। वेंट्रल साइड डॉर्सल वेंट्रल साइड इसकी वाइट होती है और डॉर्सल साइड जो है वो ब्लूइश या ब्राउनिश कलर की होती है, जिसमें नैरो वाइट क्रॉस स्ट्रिक्स पाई जाती हैं, अनुप्रस्थ धारियाँ पाई जाती हैं। इनके विषदंत छोटे होते हैं, उनसे केवल सुपरफिशियल घाव होते हैं, परंतु इनका विष कोबरा से 3 गुना विषैला होता है। यह एक स्थलीय तथा दिनचर सर्प होता है जो छोटे एम्फीबियंस, लिजर्ड्स, स्नेक्स और मैमल्स को खाता है। बुनगेरस फैसिकेटस अधिकतर उत्तरी भारत तक सीमित होता है। इसके शरीर पर एकांतरण चौड़े काले और पीले वलयों के चिन्ह होते हैं जो इसे सुंदर परंतु भयंकर आकृति प्रदान करते हैं। ये है बुंगेरस सेरुलियस जो कि ब्लैक या ब्राउनिश कलर का होता है। इसकी डॉर्सल सरफेस पर सफ़ेद अनुप्रस्थ धारियाँ दिखाई दे रही हैं और ये है बुंगेरस फैसिएटस। इसके शरीर पर काले और पीले रिंग्स के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं जो इसे सुंदर बना रहे हैं, लेकिन ये भयंकर आकृति प्रदान करते हैं। नेक्स्ट इज ट्रू और पिटलेस वाइपर्स, गर्तहीन वाइपर्स। The largest Indian pitless viper is the Russell's viper or Vipera russelli. It is about 1.5 meters long. Its head is distinct, triangular, flat and covered with small scales. Nostrils are lateral, oblique and very large. Upper surface of body shows 3 rows of large black rings appearing like chains, hence the common name chain viper. Head shows a yellow A mark. Subcaudal shields are in 2 rows. Phalanges are large, tubular and lie down when not in use. It makes a loud hissing sound when attacked. It is nocturnal, viviparous, thoroughly terrestrial and feeds chiefly on mice. भारतवर्ष का सर्वाधिक बड़ा गर्तहीन वाइपर रसेल वाइपर या वाइपेरा रसेलाई है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबा होता है। इसका सिर स्पष्ट ट्रायंगुलर, चपटा और छोटे शल्कों से ढका होता है। नॉस्ट्रिल्स पार्श्वीय, ऑब्लिक, तिरछे और बहुत बड़े होते हैं। शरीर का ऊपरी तल श्रृंखलाओं की भांति दिखने वाले बड़े काले रिंग्स की 3 पंक्तियां प्रदर्शित करता है, इसलिए इसका सामान्य नाम श्रृंखला वाइपर या चेन वाइपर है। सिर पर एक पीला ए चिन्ह प्रदर्शित होता है। सब कॉर्डल शील्ड्स 2 रोज में होते हैं। फैंजेस बड़े नलिकाकार होते हैं और जब काम नहीं आते तो ये नीचे पड़े रहते हैं। आक्रमण होने पर यह एक जोर की फुफकारने की ध्वनि उत्पन्न करता है।
यह रात्रिचर है, विविपैरस है, पूर्णतया स्थली है तथा मुख्यतः चूहों को खाता है। Another pitless viper from South India is Achis carinata. It lives in sandy areas with scant vegetation. It is small, about half a meter long, and with a single row of subcaudals. Color is green or brown with black and brown spots and a white belly. Back scales are strongly keeled and serrated, hence the common name saw-scaled viper. In other features, it resembles the Russell's viper. Its bite is not fatal to man. दक्षिण भारत का एक अन्य गर्तहीन वाइपर एकिस कैरिनेटा है। यह कम वनस्पति वाले रेतीले क्षेत्रों में रहता है। ये छोटा, लगभग आधा मीटर लंबा होता है और इसमें सब कॉर्डल स्केल्स की एक सिंगल रो होती है। इनका कलर काले और हरे काले और हरे ये तथा ब्राउन स्पॉट्स वाला होता है तथा इसकी बेली वाइट होती है। इनके पीठ के जो शल्क हैं वो स्ट्रांगली कील्ड होते हैं, यानी कि दांतेदार होते हैं, इसलिए इनका कॉमन नेम सॉ स्केल्ड वाइपर है। अन्य लक्षणों में ये रसेल के वाइपर के समान ही होता है। इसका काटना मनुष्य के लिए घातक नहीं होता। ये देखिए, ये रसेल्स वाइपर है। इसमें काले काले वलयों की 3 पंक्तियां स्केल्स की दिखाई दे रही हैं, इसलिए इसको चेन वाइपर भी कहा जाता है। और ये है एकिस कैरिनेटा। इसके शरीर पर भूरे और सफ़ेद शल्कों की पंक्तियां दिखाई दे रही हैं। इनके जो शल्क है वो काफ़ी सिरेटेड है, मतलब नुकीले हैं, इसलिए इस वाइपर को सॉ स्केल्ड वाइपर भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज पिट वाइपर. Pit vipers differ from true or pitless vipers in having a loreal pit between the eye and nostril on either side. The loreal pits form heat sensitive organs, but they resemble pitless vipers in the possession of a robust body, triangular head with scales, broad ventrals, vertical pupil, solenocyclic phalanges and viviparity. ये वास्तविक या गर्दहीन वाइपर से नेत्र और नासा छिद्र के बीच में एक लोरियल पिट होने के कारण भिन्न होते हैं। लोरियल पिट ऊष्मा संवेदी अंग होते हैं। इनका पुष्ट शरीर शल्कों से युक्त त्रिकोणाकार सिर, चौड़े अधर शल्कों, वर्टिकल या उदर प्यूपिल, परिनलिकीय फेंजेस या विष दंतों
और विविपेरिटी में वे गर्दहीन वाइपर के समान होते हैं। एनिसिस्ट्रोडोन या एगिस्ट्रोडोन हिमालयनस भारत का भूरा हिमालयी गर्द वाइपर है। Himalayan pit viper of India is very common in eastern hills as well as Kashmir and grows to nearly 70 centimeter. ये पूर्वी पहाड़ियों के साथ साथ कश्मीर में बहुत सामान्य है और 70 सेंटीमीटर तक बढ़ता है। Its head bears shields, subcaudals are in 2 rows and tail ends in a long spine-like scale. इनके सिर पर शील्ड्स होते हैं। सब कॉर्डल्स 2 रो में होती हैं तथा पूंछ एक लंबे शूक के समान शल्क में समाप्त होती है। इन एनिस्ट्रोडोन hypnal of South India, snout is bossy and slightly turned upwards. दक्षिण भारत के ए हिप्नेल में स्नाउट गुलिकाधारी, बॉसी और थोड़ा ऊपर को मुड़ा होता है। ये देखिए, ये एस्ट्रिस्ट्रोडोन हिमालयनस है जो कि भूरे रंग का होता है। लिकेसिस या ट्राइमरसोरस strigatus, also common in South India, grows to about 40 centimeter. Its snout has shields, rest of the head bears scales, slightly prehensile tail ends in a conical scale. Color is brown with irregular dark spots. Neck bears a white horseshoe mark. A dark brown band runs behind each eye. लिकेसिस या ट्राइमरसोरस स्ट्राइगेटस दक्षिण भारत में सामान्य रूप से पाया जाने वाला है। ये लगभग 45 सेंटीमीटर तक वृद्धि करता है। इसके स्नाउट पर शील्ड्स और शेष सिर पर शल्क होते हैं। इसमें स्लाइटली प्रीहेंसाइल या परिग्राही पूंछ होती है जो कि एक कॉनिकल स्केल पर समाप्त होती है। इसका रंग इरेगुलर डार्क स्पॉट्स सहित भूरे रंग का होता है। गर्दन पर एक सफ़ेद घोड़े की नाल का चिन्ह होता है। प्रत्येक आँख के पीछे एक गहरी भूरी पट्टी पाई जाती है। The famous rattlesnake Crotalus of North America is easily distinguished by the presence of a rattle at the end of tail. It consists of 10 to 12 horny hollow segments loosely held together. During locomotion, the rattle strikes ground producing a rattling sound. Before striking, the rattle vibrates producing a buzzing sound which serves as a warning. उत्तरी अमेरिका का एक प्रसिद्ध रैटल स्नेक क्रोटेलस है। इसके पूंछ के सिरे पर रैटल होने से सुगमतापूर्वक पहचाना जाता है। रैटल में एक साथ लगे ढीले 10 से 12 श्रृंगी खोखले खंड होते हैं। प्रचलन में रैटल भूमि पर रगड़कर खड़खड़ की ध्वनि उत्पन्न करता है। आक्रमण से पूर्व रैटल कंपन द्वारा भिनभिनाहट की ध्वनि उत्पन्न करता है जो एक चेतावनी का कार्य करती है। दिस इज
लेकेसिस और ट्राइमरसूरस स्ट्राइगेटस, जो कि इर्रेगुलर गहरे धब्बों सहित भूरे रंग का है। इसके गर्दन पर एक सफ़ेद घोड़े की नाल का चिन्ह होता है और प्रत्येक आई के पीछे एक गहरी भूरी पट्टी पाई जाती है। और ये है रैटल स्नेक क्रोटेलस, जो कि उत्तरी अमेरिका का प्रसिद्ध स्नेक है। इसके पूंछ की तरफ हम देखें तो रैटल दिख रहा है। रैटल होने के कारण इसको हम आसानी से पहचान सकते हैं। ये रैटल भूमि पर जब रगड़ खाता है तो खड़खड़ की आवाज़ या ध्वनि उत्पन्न करता है। जब ये किसी पर आक्रमण करता है तो पहले रैटल कंपन द्वारा एक भिनभिनाहट या खड़खड़ाहट की ध्वनि उत्पन्न करता है, जो एक चेतावनी का कार्य करती है। वाटर स्नेक्स। In meshy waters or in the neighborhood of water sources, water snakes may be found, which may be identified by rather short and stout body and a long tail. The freshwater snakes are all non-poisonous. However, some sea snakes are poisonous. Water snakes, particularly the sea snakes, have bright colored ranging from many shades of yellow to olive brown. The common freshwater snake is Xenocrophis piscator, also known as checkered keelback, as it has the dorsal spots arranged in series forming a clapboard pattern, which can be identified by characteristic sound. Pupils with speckled greenish golden area around them. Nostrils are placed high on the snout, which facilitate respiration in water. It feeds on small fishes and frogs. Flesh of water snakes is relished in many parts of the world. वाटर स्नेक्स मैशी वाटर्स या वाटर सोर्सेज के समीप पाए जाते हैं। इनको हम आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि इनका जो शरीर है वो छोटा स्टाउट होता है और टेल लंबी होती है। फ्रेश वाटर स्नेक्स जो हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं, लेकिन सी स्नेक्स कुछ सी स्नेक्स जो हैं वो पॉइजनस होते हैं। सी स्नेक्स के ब्राइट कलर वाले होते हैं और इनमें रंगों के कई शेड्स होते हैं। ये येलो से ऑलिव ब्राउन कलर के पाए जाते हैं। कॉमन फ्रेश वाटर स्नेक ज़ेनोकॉर्फिस पिस्केस्टर है, जो कि चेकर्ड कील बैक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके शरीर पर डॉर्सल स्पॉट्स होते हैं जो कि चेकर्ड बोर्ड के समान अरेंज्ड होते हैं और इनको इनकी साउंड से भी पहचाना जा सकता है। इनके नोस्ट्रिल्स या नासा छिद्र स्नाउट के एकदम ऊपर की तरफ स्थित होते हैं, जिसके कारण से ये आराम से पानी में रेस्पिरेशन कर सकते हैं। ये स्मॉल फिशेस और फ्रॉग्स को खाते हैं। इन स्नेक्स का मांस दुनिया के कई हिस्सों में खाया जाता है। Sea snakes inhabit tropical parts of Indian and Pacific Oceans. They pass their whole life in sea water
and are highly poisonous. They look eel-like and are easily identified by their elevated and laterally compressed oar-like tails suited for swimming. Their food consists of small fish. Head is small and shielded above. Eyes are small with rounded pupil. Nostrils are valvular and lie at the tip of snout to permit breathing while in water. Ventral sheaths are narrow, rudimentary or absent. All are viviparous. Most common Indian sea snake is Hydrophis with 20 or more species. Its lower jaw is not notched in front. In Hydrina, the lower jaw is deeply notched in front. ये इंडियन तथा पैसिफिक ओशियंस के उष्णकटिबंधीय भागों में पाए जाते हैं। ये अपना संपूर्ण समुद्री जीवन समुद्री जल में व्यतीत करते हैं। अत्यंत विषैले होते हैं। ये ईल के समान दिखाई देते हैं। इनकी टेल लेटरली कंप्रेस्ड होती है, चप्पू की भांति होती है, इसलिए इनको हम आसानी से पहचान सकते हैं। चप्पू के समान पूंछ होने के कारण ये आराम से आसानी से समुद्र में तैर सकते हैं, तो ये पूंछ तैरने के लिए अनुकूलित होती है। इनका भोजन छोटी मछलियाँ होती हैं। सिर छोटा और ऊपर से शील्ड्स द्वारा ढका रहता है। आंखें छोटी और गोल पुतली सहित होती हैं। नोस्ट्रिल्स कपाट युक्त और स्नाउट के छोर पर स्थित होते हैं, जो जल में रहने पर श्वसन में सहायक होते हैं। वेंट्रल शीट्स संकीर्ण, वेस्टिजियल, रूडिमेंट्री या एब्सेंट अनुपस्थित होते हैं। ये सब विविपैरस होते हैं। सर्वाधिक सामान्य भारतीय समुद्री सर्प 20 या अधिक जातियों वाला हाइड्रोफिस होता है। इसका निचला जबड़ा सामने से खांचदार नहीं होता। इन हाइड्रीना में निचला जबड़ा सामने गहरा खांचदार होता है। ये देखिए, ये है हाइड्रोफिस। इसमें हम देख रहे हैं पीछे पूंछ लेटरली कंप्रेस्ड है। पत्तू इसके कारण से ये चप्पू के समान कार्य करती है और इसकी सहायता से ये पानी में आसानी से तैर सकते हैं। और ये है चेकर्ड कील बैक। इसमें इनके जो स्केल्स हैं उनका पैटर्न चेकर्ड बोर्ड के समान है, इसलिए इनका सामान्य नाम चेकर्ड कील बैक है। इनकी पूंछ काफ़ी लंबी है। Coral snakes. These are small snakes of cobra family Elapidae living in sandy areas near sea beaches. Although poisonous, they are not fatal to man. As in cobra, the third supralabial touches eye and nostril, but hood and spectacle mark are absent. Common South Indian coral snake Hemibungerus nigrescens is 1.2 meters long, colored black or brown above and red below. A black mid-dorsal line runs throughout with black oval spots on either lateral side. Calophis is about 50 centimeter long. It is without longitudinal band but with about 40 narrow
equidistant black white edged rings. Micrurus, a poisonous coral snake of USA and tropical countries, is beautifully colored with bands of black, red and yellow. कोरल स्नेक्स समुद्री तटों के निकट रेतीले क्षेत्रों में रहने वाले सांप होते हैं। इनकी फैमिली इलेपिडी है। ये छोटे स्नेक्स होते हैं। यद्यपि ये विषैले होते हैं फिर भी मनुष्य के लिए घातक नहीं होते। कोबरा की तरह इनके थर्ड सुप्रालेबियल शल्क नेत्र और नोस्ट्रिल्स को टच करते हैं परंतु हुड और ऐनक का चिन्ह नहीं होते। साधारण दक्षिण भारतीय कोरल स्नेक हेमीबुंगेरस नाइग्रिसेंस है जो कि 1.2 मीटर लंबा होता है। ये ऊपर से काला या भूरा और नीचे से लाल होता है। इसके दोनों पार्श्वों में काले अंडाकार धब्बे सहित एक अनुदैर्ध्य मध्य पृष्ठ काली रेखा होती है। कैलोफिस लगभग 50 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसमें अनुदैर्ध्य पट्टी नहीं होती परंतु लगभग 40 संकीर्ण समान दूरी वाली सफ़ेद किनारों वाली काली रिंग्स होती हैं। यूएसए और ट्रॉपिकल कंट्रीज में विशैला कोरल सर्प माइक्रूरस पाया जाता है जिसमें काली, लाल और पीली पट्टियाँ पाई जाती हैं जिसके कारण से ये सुंदर दिखाई देता है। ये देखिए, ये है हेमीबुंगेरस नाइग्रिसेंस जो कि ऊपर से काला भूरा है, नीचे से ये लाल है, बीच बीच में इसके सफ़ेद पट्टी प्रेजेंट है। और ये है मिक्र्यूरस जो कि यूएसए तथा दूसरे उष्णकटिबंधीय देशों में पाया जाता है। इसमें काले, लाल और पीली पट्टियाँ पाई जाती हैं जो इसे सुंदर रंगीन बनाती हैं। तो आज हमने कुछ विषैले सर्पों के बारे में जानकारी प्राप्त की। थैंक यू।